So our today's topic is evolution of double integral in polar coordinates. Okay, चलिए. So let the region be defined by the curve. Let the region be defined. Region R be defined by the curve by the curve by the curves r equal to f1 theta, then r equal to f2 theta, and your theta is alpha and theta is beta. Okay, these are the curves. Then the double integral, then the double integral can be evaluated as follows. Can be evaluated as follows. Okay, just see how to evaluate this. So evaluation of double integral. The first one is theta running from alpha to beta, and theta and r running from f1 theta to f2 theta, and your function in terms of r and theta. We evaluate with respect to r first, then theta later. Okay, and this is formula for evaluation of double integral in polar coordinates. Now let us do some problem based on this, then you will understand what is the polar coordinate and how to evaluate the integral in polar coordinate. Okay, so should I take a problem? Example number 1. Suppose evaluate the integral. First example, evaluate the integral integration of limit 0 to pi by 2, then integration of limit 0 to a cos theta and r sin theta dr and d theta. Okay, we have to evaluate this integral, okay, in polar coordinate. So for this, what I have to do? Can anybody tell me? For this, what I have to do? Nothing. We just write down let given integral. So solution for this, let us see how to evaluate. So we write let I equal to the given integral. I equal to given integral. What is that? Integration of limit 0 to pi by 2 and integration of limit 0 to a cos theta. Okay, and your function is given r sin theta dr and d theta. Which limit is given to you first? This is the limit of r. Okay, this is the limit of r in terms of theta. Na? The limit is in terms of theta, so limit of r is given to you, and theta is always a real number. Okay, 0 to pi by 2. So therefore we evaluate with respect to r first. Integration of limit 0 to pi by 2. So we evaluate with respect to r first, then sin theta is a constant. Okay, so I'm just evaluate this is what r square by 2. Okay,
and provide limit 0 to a cos theta, okay, and sin theta as it is, and d theta, okay. So 1 by 2 is constant, take outside. 1 by 2 integration of limit 0 to pi by 2. Then instead of r square we put what? A square cos theta square, okay. We putting here a square cos theta square, means cos square theta, okay, and minus lower limit. What is the lower limit? 0. Lower limit is 0. Getting? Now write down sin theta and d theta. Then what? Then this equal to a is constant, just take outside. So this is a square by 2 integration of limit 0 to pi by 2. Then here this is theta. Then we write here sin theta into cos squared theta and d theta. This is the trigonometric formula of beta function. Yes or no? Yes or no? यस हाँ सर। बोलो। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि पहले आर से करना है कि थीटा से करना है? अरे भाई ये तो फार्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आर से ही हमको करना है। लास्ट में आपको रियल नंबर रहेगा उसको लेटर करना है। पहले वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आपको फर्स्ट इवेलुएट करना है, ठीक है। और आगे का थीटा आ गया तो मतलब पहले उससे करना होगा ना? हाँ पहले आपको विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ही करना है। देन देर आर टू लिमिट, पहला पहला लिमिट आपका कांस्टेंट एंड सेकेंड वन आपका वेरिएबल है, तो यू हैव टू इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फर्स्ट, देन इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू वी हैव टू इवेलुएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। बाद में कांस्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की लिमिट आपको बाद में पुट अप करना है। समझ में आया? वेरिएबल में ही तो हम उसके कांस्टेंट लिमिट पुट करेंगे। आंसर कभी भी आपको वेरिएबल में नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा कांस्टेंट में ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। So this can be written as a square by 2. Trigonometric formula 0 to pi by 2 can be written as what? 1 by 2 beta of p plus 1. P means 1 divided by 2 and q plus 1 2 plus 1 divided by 2. Is this correct? Yes or no? यस सर। हाँ, so this is what? This is equal to a square by 4, 2 to the 4, and beta of 2 by 2, that is 1, and comma 3 by 2. Now here we will apply the properties of beta function. So just apply the proper relation between beta and gamma function. So we write I equal to, and what is that first one? A square by 4. So this is a square by 4, and we apply the relation between beta and gamma function, that is m into gamma of m into gamma of n, that is 3 by 2, and divided by gamma of m plus 1, that is what? 1 plus 3 by 2, okay. So this can be written as what? A square by 4. Gamma of 1 is 1. Gamma of 3 by 2 can be written as what? Apply the formula of gamma of n equal to n minus 1, then gamma of n minus 1 formula. Just apply over here. So you will get what? 3 by 2 minus 1. So that is what? How much? 3. That is 1 by 2. Here you get 1 by 2 and gamma of 1 by 2, and divide by how much? This 3 1 ja cross multiply kare 2 and 5, that is 5 by 2. Yes, 2 1 ja 2 plus 3 5 by 2. So this is a square by 4, and this will be what? A square by 8, okay, a square by 8.
So write a square with 4 and 2 multiply. This is a square by 8. And gamma of 1 by 2 is how much? Gamma of 1 by 2 is how much? रूट फाइव रूट रूट पाई पाई रूट पाई. चलिए मैं लिख देता हूँ रूट पाई and divide by this. Now again apply the formula of this again. So you will get 5 here, 5 by 2 minus 1. Then here you will get 3 by 2. Okay, 3 by 2 and gamma of what? Gamma of 3 by 2. Again reduce this. So this gives a square into root pi and divide by 8 and here we write 3 by 2. Again we will reduce to this, so you will get 1 by 2 and gamma of 1 by 2. It is clear? Is this clear or not? Yes or no? यस सर Ah, so this is a square and root pi divide by यहाँ पे 8 into 3 by 2 into 1 by 2 as it is. इसको मैं क्या लिखूंगा? रूट पाई. So root pi cancel. So this is what? 2 to the 4. 2 to the 4 and 4 to the 8. So this gives a square by 2 into 3. So this is what? A square by 6 and which is your final answer. ठीक है? A square by 6. I hope you understood this. How to evaluate? Yes or no? यस सर किसी को डाउट यहाँ पे? देखिए अगर आप बीटा गामा फंक्शन नहीं पढ़े होगे, उसका रिलेशन नहीं पता होगा तो फिर आप ये इवेल्यूट नहीं कर पाओगे आप, तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी. सर वो 2 into 3 कहाँ से आ गया सर? 4 into 3 होएगा ना? 4 into 3 भाई देखिए, ये देखो ये तो डिनोमिनेटर में ना, यहाँ पे देखो ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 है. समझ में आइए? ये सुनो. यस सर. आसान है. चलिए नेक्स्ट. और प्रॉब्लम लूँ मैं? चलिए एक हाँ और प्रॉब्लम लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. चलिए. prove that integration of limit 0 to pi, integration of limit 0 to a 1 plus cos theta. Okay, then r dr d theta is equal to how much? Is equal to 3 pi a square by 4. 3 pi a square by 4. We have to prove this. Okay, let us see how to solve this problem or how to prove. So you consider the left hand side, that is your left hand side is given to you. Integration of limit 0 to pi and integration of limit 0 to a1 plus cos theta and r dr d theta. Okay, this is given to you. Then what happen? We have to evaluate this integral, inner integral first, then outer integral. Okay, so 0 to pi as it is, and we integrate with respect to r. So this become r square by 2 and provide limit 0 to a 1 plus cos theta and d theta. Okay, so 1 by 2 as it is, 1 by 2 is constant, take outside, integration of limit 0 to pi. Okay, instead of r square we putting this, so this become a square 1 plus cos theta square minus lower limit, your lower limit is 0. Okay, your lower limit is 0 and write down d theta as it is. So this is equal to 1 by 2
integration of limit 0 to pi. Okay. Now what happened here? Now just open the bracket. So a square, this is the a square, just take outside. A square, so just take outside. A square is a constant, so this become a square by 2. Okay. Now I am opening the bracket, that is 1 plus 2 cos theta and plus cos square theta. Is there any change? No, I'm just opening the bracket, and d theta. Now for this, what I have to do, this equal to a square by 2. Okay, a square by 2. Okay, now what? Integrate this. So integrating, this is integration of limit 0 to pi d theta, and plus 2 is constant, I'm taking outside, cos theta d theta 0 to pi. Okay, and plus integration of limit 0 to pi. Okay, cos square theta and d theta. चलिए, so this equal to what? A square by 2. This will what? This will theta. Theta, provide limit 0 to pi and plus 2 plus 2. Then what? Integration of cos is what? Sine. Yes. Sine theta and provide limit 0 to pi. Okay, and plus this can be evaluated. No, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We have to write integration of limit 0 to pi. We write the formula 1 minus cos 2 theta divided by 2. This is the formula for cos square. सॉरी, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है, दिस इज फार्मूला फॉर cos square. So how to evaluate this? Can anybody guess? Yes or no? Yes or no? Yes, चलिए. sir. हाँ. Yes. Yes, sir. Yes. Now this is the constant d theta as it is. Okay. Now close the bracket. Now provide limit. This is equal to a square by 2, and upper limit is pi, lower limit is 0. Okay. Plus 2 here. ये तो पूरा 0 हो जाएगा. Sin pi minus sin 0 and plus this is 1 by 2. Okay. And integration of 1 is theta, and plus integration of cos is sine 2 theta, but here not sine, here पे coefficient is 2, so we divide by 2. Okay, now provide limit 0 to pi and big bracket. So this is equal to a square by 2, and here you will get pi and plus sin pi 0 and sin 0 is 0. The whole multiply by thing is 0. Okay, मैं यहाँ वाला नहीं लिखा हूँ, मैं इधर का लिखा हूँ. And plus 1 by 2. चलिए, upper limit is pi and plus lower limit, sorry, upper limit 2 pi. Okay, 2 pi divided by 2. Okay, minus lower limit 0 and plus sin 0 by 2. Anything multiply by 0 is 0. जीरो सर उसका वैल्यू नहीं लिखे हैं आप. किसका? पाई माइनस जो जीरो है. पाई माइनस 0 भाई, पाई माइनस 0 तो पाई ही होता है ना. सर और ये साइन पाई माइनस साइन 0. तो वही साइन पाई 0 और साइन 0 भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. ये वाला सर साइन पाई माइनस है ना, मल्टीप्लाई नहीं है. ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे. साइन 0 क्या होता है? साइन पाई इज 0. ठीक है, एंड माइनस साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है? 0. तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0.
नहीं समझ में आया? आपको ABCD करके बताऊं? सर मैं आ गया समझ में। आ गया ना? Yes, sir. जहां पर देखो नहीं समझ आया तुरंत बताने का। इधर मैं आपके लिए ही हूँ। आपके लिए मतलब कि आप लोगों के लिए ही। ठीक है, हाँ चलिए। सो यस सर। दिस इक्वल टू a²/2। ओके, यहाँ पे देखिए पाई मैंने लिखा ऐसे ही, ये तो जीरो से मतलब नहीं है। एन प्लस 1/2 मैंने ऐसे लिखा, और यहाँ पे पाई तो पाई ही, एन प्लस साइन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? जीरो होता है। तो ये पे साइन जीरो हो गया, 0/2 दैट इज जीरो। ठीक है, एंड माइनस ये तो जीरो मैंने ऐसे लिखा, एंड माइनस ये साइन जीरो क्या होता है? जीरो, 0/2 दैट इज जीरो। ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ, मैं इधर ही करता हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इक्वल टू a²/2। ओके, हियर वी राइट पाई, एंड यहाँ पे प्लस एक और पाई इधर बचा, सो पाई/2। सो 3 पाई जस्ट, बाय 2। हाँ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3, 3 पाई/2। सो दिस इज a²/2 इंटू 3 4। पाई थ्री बाय स्क्वायर फोर बाय थ्री 2। बाय फोर इज भाई किसी को नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो दिस वोट 3 पाई a²/4। आई थिंक यही हमको प्रूव करने का था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हैंस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दिस टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 3 पाई/2, 3 पाई a²/4। ओके, हैंस प्रूव। लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो? यस सर। और एक प्रॉब्लम दो, बड़ा प्रॉब्लम आपको। Yes, sir. चलिए सब्स्टिट्यूशन के बेस पे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। So let us see example number 3. Example number 3. Evaluate integration of limit 0 to pi/2. Okay, then integration of limit 0 to a sin theta, and here r square root of a square minus r square dr and d theta. Okay, this thing have to evaluate. So for this, what I have to do first? We just write After down let. the Yes, we write down let I equal to given integral 0 to pi/2 and into integration of limit 0 to a sin theta. Okay, and write down r into square root of a square minus r square dr d theta. Okay, now what I have to do the next step? Can anybody guess? सर आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट डिफरेंशिएट करेंगे ना? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सर ये यूवी रूल लगेगा ना डिफरेंशिएशन का? भाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? अंदर, अरे हाँ, आप आर भुला के जाते सर हो। अंदर जो रिस्पेक्ट रूट है उसको में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एज अ टी। क्या आप, हाँ कौन बोल रहा है? आप जरा नंबर बताइए अपना। शुभम 45 रोल नंबर। 45। हाँ शुभम बोलो, क्या इसमें करेंगे? मतलब सर रूट के अंदर जो a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है उसको सर टी ले लेंगे। पूरा पार्ट, तो ये वाले पूरे पार्ट को हम क्या पुट करेंगे? पुट a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते हैं। सो दिस इक्वल टू व्हाट, ये तो कांस्टेंट है, दिस इक्वल टू 2r dr इक्वल टू हाउ मच? dt। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट r d सॉरी
आर डी आर इक्वल टू -1/2 dt। ओके, dt। देखो फंक्शन और डेरिवेटिव यहाँ पे मिल गया। अभी सब चेंज द लिमिट व्हेन r इक्वल टू हाउ मच 0, ये वाला। दिस इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू हाउ मच a स्क्वायर, a स्क्वायर। r 0, हाँ a स्क्वायर। नाउ व्हेन r सर इक्वल अगर टू a, सब्स्टिट्यूट में अगर टी स्क्वायर लेंगे तो फिर वो a बच जाएगा ना सर? t स्क्वायर क्यों लेंगे? नहीं, तो टी स्क्वायर अगर लेंगे तो भी हो सकता है ना सब्स्टिट्यूट में। t स्क्वायर लेंगे तो हाँ मतलब ए स्क्वायर माइनस तो आर फिर स्क्वायर इक्वल्स टू देखो टी ए स्क्वायर। टू डी टी, फिर ऐसा नहीं चलेगा, टी स्क्वायर में नहीं वर्क करे भैया। ए अच्छा ए ओके। ए साइन थीटा, आर इक्वल टू ए साइन थीटा, ये पार्ट। सो दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू हाउ मच, आर के प्लेस पे रखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको ए ए को स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से। हाँ। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/2। ओके, ये तो लिमिट हमारा चेंज हो गया, 0 से कहाँ तक चला गया, 0 वाला ए स्क्वायर में चला गया, और ए वाला आर वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में चला गया, ठीक है। आर और डी आर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। तो इसको रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं, दिस इज वॉट टी, दिस इज टी, एंड दिस इज आर डी आर इज वॉट, नेगेटिव ऑफ 1/2 डी टी, ओके, एंड डी थीटा लेटर। सो दिस इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट है, इसको एकदम से मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/2, then integration of limit a square to a square cos square theta, and इसको मैं क्या लिखूँगा, t raised to 1/2 and dt d theta। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, दिस इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/2, what is the integration of this, t raised to 3/2। 3/2 divided by 3/2, and lower limit a square cos square theta and d theta, ओके। सो दिस ऊपर जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, कितना बचेगा आपको 1/3, ठीक है, ये सुनो, यस सर। 0 टू π/2, ओके। ना अपर लिमिट इज वॉट, ए स्क्वायर cos square theta raised to 3/2 minus lower limit is what, a square raised to 3/2, okay. So this is equal to -1/2, sorry 3, and 0 to π/2। सर हाँ, नहीं कुछ। 0 टू π/2, ओके। ये 3/2 है, देखो यहाँ से ए इसका 2 और यहाँ से 2 जाएगा, मतलब इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो आपको क्या मिलेगा, ए cos थीटा, ओके। ए cos यहाँ पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस, और यहाँ से भी आपको एक क्यू मिल जाएगा, 2 से 2 जाएगा, यहाँ से ए क्यू आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। ए क्यू में कॉमन निकालूं, चलिए निकालते हैं, नेक्स्ट पेज। तो देयरफॉर आई इक्वल टू ए क्यू, नेगेटिव में ए क्यू बाय 3,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 2, यही है ना कि देखते चलो 0 टू पाई बाय 2. ओके, तो व्हाट इज द रिमेनिंग इनसाइड? What the remaining inside? cos cube minus 1. Cos q थीटा माइनस 1. ओके, डी थीटा. अभी cos q आ गया, उसका मच हो गया अभी. तो cos q का देखो फार्मूला अभी हमको वहाँ पे लगाना पड़ेगा. तो क्या फार्मूला हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे सर cos वो वाला 3. हाँ यस यस, रुको जरा. यहाँ पे देखो. वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना cos 3 थीटा वाला. हाँ यस यस, यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ. 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 43. दैट इज व्हाट? 4 cos q थीटा माइनस माइनस 3 3 cos स्क्वायर 3 cos थीटा. ठीक है, यहाँ से थीटा। मैंने cos q की वैल्यू निकालूंगा मैं. तो इसको मैं इधर भेजूंगा. तो क्या आएगा? cos 3 थीटा माइनस का प्लस होगा 3 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स ऑफ cos q थीटा. ठीक है, 4 को इधर भगा दो तो क्या मिलेगा? ये cos q थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा एंड प्लस 3/4 cos थीटा. ये मिलेगा ना आपको? यस और नो? यस सर. यस सर। हाँ, चलिए इसके प्लेस पे पुट कर दो यहाँ पे आराम से. सो दिस इक्वल टू माइनस AQ/3 इंटीग्रेशन अब लिमिट 0 टू पाई बाय 2 और AQ मतलब 1/4 cos 3 थीटा एंड प्लस 3/4 cos थीटा माइनस 1. ओके, एंड डी थीटा. अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं. माइनस AQ/3 ये तो 1/4 है. 1/4 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos का इंटीग्रेशन साइन sin 3 थीटा अपॉन 3. साइन 3 थीटा अपॉन 3. 3. ओके, एंड प्लस 3/4 साइन थीटा. ओके, यहाँ पे माइनस थीटा. ठीक है, एंड प्रोवाइड लिमिट 0 टू पाई बाय 2. pi by 2. ओके, सो माइनस AQ/3 अपर लिमिट 1/4 साइन 3 पाई बाय 2 and divide by 3. Okay, and plus 3/4 sine pi by 2 plus and minus pi by 2. Okay, and minus lower limit sine 0 0 0 everything is 0 0 plus 0 and minus 0. समझ में आया ना ये? Yes or no? Yes or no? यस सर. साइन 0 0 और थीटा 0. तो यहाँ से हम आपको क्या करेंगे? माइनस AQ/3 1/4 एज इट इज साइन 3 पाई बाय 2. हाउ मच? हाँ, साइन पाई बाय 2 -1 ना. -1 आएगा. यस चलिए -1 और यहाँ पे 3 है. ये तो 3 यहाँ लिख दो एंड प्लस 3/4 1 है. ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? 1 है. तो 1 माइनस पाई बाय 2. ठीक है, तो 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज AQ/3 माइनस में एंड हियर नेगेटिव ऑफ 1/12. ओके, एंड प्लस 3/4 प्लस है यहाँ पे एंड माइनस पाई बाय 2. हाँ, पाई बाय 2 इधर रख दो. पाई/2. चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं. माइनस AQ/3 यहाँ पे नेगेटिव. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे. यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा. 12
12 एंड प्लस यहाँ पे 4 3 जा, तो यहाँ पे 9 आएगा माइनस पाई बाय 2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए क्यू बाय 3. इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10/12 हो जाएगा एंड माइनस पाई बाय 2. तो माइनस माइनस सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. सर वो कहाँ से आ गया -10? क्या? सर 8 आएगा ना? हाँ, ये तो सॉरी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा. सर कैलसी में पाई का वैल्यू 180 लूंगा ना? आप कुछ पाई की वैल्यू कुछ लिखनी नहीं, पाई को पाई ही रहने दो. अच्छा, ठीक है, चलिए अभी थोड़ा अच्छे से करो. ए क्यू बाय 3, इसको कट कर दो. किससे कट होगा, 4 से. 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड माइनस पाई बाय 2. अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ए क्यू बाय 3. ठीक है, माइनस मैं अंदर ले रहा हूँ, तो ये माइनस अंदर ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा. पाई बाय 2 माइनस 2/3. Yes, it is, yes, correct. It is correct. This is your and final answer. I hope you understood how to solve this problem. Yes or Yes, no? यस बहुत ही सर. आसान प्रॉब्लम था ये. था कि नहीं था? हाँ सर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. एग्जाम्पल नंबर हाउ मच? 3 सर. 4 4. ये कौन सा था हमारा? 3. यहाँ पे लिखा था ना, इसको बीच में आ गया, इसको उड़ाना पड़ेगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4. चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to पाई बाय 4. ओके, देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा. यही है, चलिए ठीक है, यही ले लेते हैं. एंड r डिवाइड बाय हाउ मच, r डिवाइड बाय 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, एंड dr एंड d थीटा. ओके, this problem have to evaluate. How to evaluate this? Let us see. First we write down given integral. So we write down let I equal to given integral. Okay, your integral is 0 to pi by 4. Then integration of limit 0 to square root of cos 2 theta. Okay, then your function is r 1 plus r square का square dr and d theta. Okay, now how to evaluate this problem? Can anybody guess? बताओ, how to evaluate this integral? सर आर को tan थीटा कर सकते हैं. r को tan थीटा करेंगे, चेंज द लिमिट करेंगे तो फिर हाँ कर सकते हो. करो जरा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट सर. करोगे कि डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? करके देख लेते हैं सर. क्या नहीं, पता अभी नहीं सर वैसे. अभी एक्सपेरिमेंट करोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे? देखो, जो माइंड में पहले आता है ना दिमाग में, तुरंत उसको अप्लाई कर देने का. अगर आप चेंज Yes. करोगे ना तो सेकेंड जो थिंकिंग हमेशा गलत ही रहता है. तो आप जरा अप्लाई करो, देखो r इक्वल टू Yes. tan थीटा जो भी पुट करना चाहते हो तो करो, जरा देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उस तरह से जानना चाहते हो कि अलग वे से जानना चाहते हो? सर आप दूसरे वे से कर लो, मैं इस वे से ट्राई करके देखता हूँ आता है कि नहीं. सर हाँ, ये ठीक नीचे है. का जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको पहले ये यूज कर लेते हैं. हाँ चलिए करते हैं, ठीक है. ओके, तो दिस इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और भी वे होते हैं, और भी टेक्निक होते हैं। यू कैन गो बाय एनी वे, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है यू कैन अप्लाई दैट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेथड आपका लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अप्लाई करें और आप बोलोगे सर तो मैंने किया तो था, तो ऐसा नहीं, जो प्रॉपर वे होना चाहिए उसी के अनुसार जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ तो बताऊँगा। यहाँ पे अगर मैं 1/2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू थीटा। ओके, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एंड 1 माइन प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, ओके, एंड डी आर डी थीटा। ऐसा किया तो आपको कुछ दिक्कत? यस नो? नो सर। हाँ सर, नो वो फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, नीचे अगर ऊपर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो लॉग हाँ, में लिखने का। लॉग में लिखने का मतलब नहीं। अभी देखो ये होता है ना, जैसे कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका लॉग एक्स इंटीग्रेशन होगा ना सर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका ओ सॉरी, इंटीग्रेशन, हाँ एक्स हाँ स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू -2 बनेगा। हाँ, इसका आएगा 1 अपॉन एक्स आता है ना। हाँ सर बराबर। हाँ, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ इधर। देखिए 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, तो इसका आएगा माइनस नेगेटिव में, ये तो 1 है तो इसको मैं साइड पूरा बाहर ले लेते हैं 1/2। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव भी इधर प्रेजेंट है ना, तो -1/1 प्लस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1/r² हो गया, और यहाँ पे आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज व्हाट, cos 2 थीटा। ओके, नाउ डी थीटा। और सर वो 2r जो था वो कौन सा टूअर? ऊपर ए का। गया ना, गया ना वो फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव निकाला ना मैंने। हम्म? देखो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता तो कैसा लिख, जैसे कि 1/1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, इसको डेरिवेटिव निकालता तो मैं कैसा लिखता है इसको? हाँ, इसको बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालता मैं? इसको मैं एक समझता। ठीक है, जैसे ये है, किसका? इसका, सॉरी, इसका डेरिवेटिव निकालता मैं, क्या निकालता बताओ? सर उसको ऊपर लेके जाते हैं। 1/1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर करता, यहाँ पे माइनस लेता। ठीक है, माइनस लेता ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव मैं वापस लूंगा, मैं 2r हो गया। ठीक है, अगर चलो मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा? 1/, यस मैंने सर, क्या वो किया? 2r आ जाएगा वापस, उसको सर कट हो जाएगा हाँ, क्या? यस, इसको देखो मैंने ओके। डिफरेंशिएट किया, तो इसको इंटीग्रेट यस करेंगे तो ये भाग जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो यस सर। आपको मिलेगा, सॉरी कहाँ गया ये, 1 प्लस r² मिलेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस साइन मैंने यहाँ पे ले लिया 2r/1 प्लस r² का स्क्वायर। ठीक है, इसी की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये प्लस हो गया। समझ में आया क्या? समझा सर। हाँ हाँ, चलिए वैल्यू डालो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 4। ओके, माइनस एन एस, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, चलो ले लिया। अपर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट? 1/1 प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाएगा, क्या मिलेगा आपको? चलो मैं पुट कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos 2 थीटा का स्क्वायर, ओके, माइनस लोअर लिमिट, योर लोअर लिमिट विल बी 1 आएगा, तो 1 + 0, आर के प्लेस पे मैंने 0 रखा, और यहाँ पे आपको डी थीटा लिखूंगा मैं, यहाँ पे आप सेंस लगा दो, आपको ये समझ में आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय
0 to pi by 4 and 1/1 प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको cos 2 थीटा, ओके, एंड -1 and d theta. What is the formula of 1 plus cos 2 theta? बोलो, what is the formula of that? किसी को पता है? वो ये ना नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 2 cos बताओ। स्क्वायर थीटा। हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/2 है ना, दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन आप लिमिट 0 to π/4 और π/4 है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, ठीक है। 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था वहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2/2 2 कैसा हो जाएगा, -1 एंड d थीटा, ओके। सो दिस इज -1/2 इंटीग्रेशन आप लिमिट 0 to π/4, ये तो 1/2, ये 1 कॉस का, कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से रिवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, तो दिस इज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन आप लिमिट 0 to π/4 और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 - 1/2 सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। चलो इंटीग्रेट करते हैं फटाफट। So this is equal to 1/2. 1/2. What is the integration of 1? Theta minus 1/2 integration of sec square is what? 10 theta। 10. Yes. Tan theta and provide limit 0 to π/4. π/4. This. So just provide limit 1/2 upper limit π/4 and minus 1/2 10 है भाई, 1/2 10 π/4, this is the upper limit, minus lower limit is 0 minus 1/2, सर एक थीटा माइनस थीटा सर किधर से आ गया सर, इसमें थीटा -1/10 थीटा। थीटा भाई इसको इंटीग्रेट किया ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट किया तो थीटा आएगा यहाँ पे, समझ में। यस सर। सो 1/2 π/4 minus 1/2, ओके। 10 π/4 इज हाउ मच, 1 आता है, 10 Yes, sir. π/4 1 आता है, यहाँ पे 10 0 0, ये भी 0, सब 0, मतलब ये तो पूरा 0। तो आपको मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो मत करो, चलो मैं कर देता हूँ। 1/2 π/4 minus 1/2, या तो ऐसा लिखो या तो क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 2 जा, ओके ऐसा। तो अब इसको ऐसा ले सकते हो, पाई -2/8, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।